ਹੈਲੋ एवरीवन ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਲਾਸ 11th ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਮਰਸ, ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਮਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਮਰਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਕਮਰਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज ਨੂੰ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ट्रेड है। मतलब इस बाय सेल दी एक्टिविटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्रेड किया गया। ਹੁਣ ट्रेड ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ट्रेड ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ट्रेड। ਇਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਟਰਨਲ ट्रेड ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ट्रेड। ਇੰਟਰਨਲ ट्रेड ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ट्रेड ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ट्रेड। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਸੈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ट्रेड। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨਲ ट्रेड। ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ट्रेड ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ट्रेड ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ट्रेड ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਨਲ ट्रेड ਦੇ ਹੁਣ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇਗੇ? ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ। ਇੰਟਰਨਲ ट्रेड ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਫੀਚਰ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ट्रेड ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ए कंट्री बी कंट्री, दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो जांदियां हैगियां, तो उत्थे गुड्स दी मूवमेंट करन ते तुहानू काफी परमिशन लैनी पैंदी है, लाइसेंस लैने पैंदे हैगे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हुंदियां हैगियां। फ्रीली तुसी कोई भी गुड एक कंट्री तो दूजी कंट्री मूव नहीं कर सकदे। तो इंटरनल ट्रेड फ्री मूवमेंट हुंदी हैगी, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड दे विच फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुंदी। डीलिंग इन लोकल करेंसी, जो भी थोड़ी कंट्री दी करेंसी है, अपनी इंडिया दी करेंसी की हैगा रूपीज, तो इंडिया दी करेंसी रूपीज दे विच ही इत्थे की होगी? डीलिंग होगी। लेकिन जदों तुसी एक्सटर्नल ट्रेड कर दोगे, उत्थे करेंसी की करनी पऊगी? चेंज करनी पऊगी। जे तुसी बी कंट्री मान लो कि कैनेडा हैगी, कैनेडा नाल डील करना, कैनेडा तो कुछ सामान मंगवाना हैगा, तो तुहानू उहदे लई की चाहिदे हैगे? कैनेडियन डॉलर्स चाहिदे हैगे, तो उत्थे तुहानू करेंसी चेंज करनी पऊगी। लेकिन इत्थे लोकल करेंसी दे विच ही काम होगा। स्पैशल एक्ट्स टू सैटल डिस्प्यूट इन केस ट्रेड दे विच देखो दो पार्टीज इन्वॉल्व होंदियां हैगियां, ए है सैलर ते ए दूसरी पार्टी की हैगी बायर, जिहड़ा समान खरीद रही हैगी। बाइंग सैलिंग हुंदी हैगी, तो दो बंदे इन्वॉल्व हुंदे, बायर ते सैलर। इन केस जदों तुसीं ट्रेड कर रहे होगे, बायर ते सैलर दे विच कोई डिस्प्यूट अराइज हो जांदा हैगा, कोई भी किसी भी चीज़ नूं लैके अगर कोई डिस्प्यूट हो जांदा हैगा, तो उस डिस्प्यूट नूं सैटल करन लई कुछ स्पैशल लॉज बने होए हैगे, स्पैशल एक्ट्स पास कीते होए हैगे। एक एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बेसिकली जो तुसीं समान बेच दोगे, उस केस से जे सैलर ना धक्का हो रहेगा या बायर ना किसी नाल भी धक्का हो रहा है, दोनों दे विच कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुंदा हैगा, तो उस डिस्प्यूट नूं सॉल्व करन लई आपां इस लॉ नूं फॉलो करांगे। तो ये सीगे इहदे फीचर्स इंटरनल ट्रेड दे कि विद इन दी बाउंड्रीज ट्रेड हो रहा है, फ्री मूवमेंट, लोकल करेंसी ते डिस्प्यूट सैटल करन लई एक लॉ बनाया हुआ है। नाउ टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड की ने गया? तो इंटरनल ट्रेड नूं आपां तीन टाइप्स दे विच ब्रॉडली कैटेगराइज कर देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, on the basis of levels ਤੇ on the basis of quantity। on the basis of relationship ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ डायरेक्ट ट्रेड ਤੇ इनडायरेक्ट ट्रेड। on the basis of level तीन टाइप्स है, लोकल, स्टेट ਤੇ नेशनल लेवल। on the basis of quantity होलसेल एंड रिटेल। on the basis of relationship पहला है डायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड केड़ा हुंदा हैगा? जिहदे विच प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर तो डायरेक्टली गुड्स कित्थे जा रही हैगियां? कंज्यूमर कोले जा रही हैगियां, वो हुंदा हैगा डायरेक्ट ट्रेड। नॉर्मली की हुंदा हैगा? प्रोड्यूसर या फिर मैन्युफैक्चरर तो गुड्स जांदियां हैगियां होलसेलर कोले, होलसेलर तो गुड्स जांदी है रिटेलर कोले, रिटेलर तो गुड्स अगे जांदियां हैगियां फिर कंज्यूमर कोले। मतलब कि प्रोड्यूसर ते कंज्यूमर विचकार कुछ बंदे हुंदे हैगे, मिडलमैन हुंदे हैगे, जिन्हां थ्रू आपां प्रोड्यूसर तो कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने हैगे। लेकिन अगर तुसीं इन्हां मिडलमैन्स नूं हटा के
डायरेक्टली प्रोड्यूसर तो कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचा रहे होंगे तो उस तरह के टाइप ऑफ ट्रेड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ डायरेक्ट ट्रेड। लेकिन जे ये बंदे इन्वॉल्वड नेगे विच, ये बंदे प्रोड्यूसर ते कंज्यूमर दे विचकार खड़दे हैगे, फिर वो हुंदा हैगा इनडायरेक्ट ट्रेड। सिंपल जी गल है, जिथे दा मैन्युफैक्चरर ते कंज्यूमर दा डायरेक्ट रिलेशन है, आपस दे विच कॉन्टैक्ट करके बाय सेल कर रहे हैं, वो डायरेक्ट ट्रेड है। जिथे उन्हां दा आपस दे विच डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं हैगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हैगा, इन्हां बंदियां थ्रू उन्हां नाल तुसीं कॉन्टैक्ट करदे होंगे, तो वो हुंदा हैगा इनडायरेक्ट ट्रेड। समझ आ गई गल इन्नी? हुण इनडायरेक्ट ट्रेड जो है वो अगे की हुंदा हैगा, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। जे तुसी होलसेलर, रिटेलर इन्हां दोनों नूं इन्वॉल्व करके कंज्यूमर तक सामान पहुंचा रहे हो, तो इस तरह के इनडायरेक्ट ट्रेड नूं कहने आपां इनडायरेक्ट ट्रेड थ्रू होलसेलर्स। लेकिन जे तुसी होलसेलर नूं विचों कढ दो, सीधा मैन्युफैक्चरर तो कित्थे जा रहा हैगा, रिटेलर कोले, फिर रिटेलर तो अगे कित्थे जा रहा हैगा, कंज्यूमर कोले, तो इस तरह के ट्रेड नूं आपां कहने हैं इनडायरेक्ट ट्रेड थ्रू रिटेलर्स। जे तुसी रिटेलर नूं भी कढ दो, मैन्युफैक्चरर तो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे होंगे थ्रू एजेंट्स। होलसेलर ते रिटेलर थ्रू नहीं पहुंचा रहे, थ्रू एजेंट्स तुसी पहुंचा रहे होंगे, तो ये हुंदा हैगा इनडायरेक्ट ट्रेड थ्रू एजेंट्स। समझ आ गई डायरेक्ट ट्रेड ते इनडायरेक्ट दे विच की डिफरेंस है, की हुंदा इनडायरेक्ट ते डायरेक्ट ट्रेड। हुण आ जाओ लेवल वाइज। लोकल ट्रेड, तुसी आपदी सिटी, आपदे शहर, आपदे विलेज या फिर आपदी डिस्ट्रिक्ट, हुण सिटी भी डिस्ट्रिक्ट दे विच आ जाओ, विलेज भी की है, डिस्ट्रिक्ट दे भी ही पार्ट आ जांदा है। तो सिंपल जी गल है, जे तुसी आपदी डिस्ट्रिक्ट दे अंदर ही की कर रहे होंगे, ट्रेड कर रहे होंगे दूजे शहर नाल, दूजे विलेज नाल, बट डिस्ट्रिक्ट ही हैगी, इको ही हैगी, तो उस तरह के ट्रेड नूं आपां की कहने हैगे लोकल ट्रेड। स्टेट लैवल ट्रेड किहड़ा होगा, जदों तुसी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स दे विच भी जाके की कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे। हुण पंजाब दे विच किन्नियां ही सारियां डिस्ट्रिक्ट्स बनदियां हैं, बठिंडा एक डिस्ट्रिक्ट है, इदां ही लुधियाना एक डिस्ट्रिक्ट है, तो उधर जदों तुसी एक डिस्ट्रिक्ट तो दूजी डिस्ट्रिक्ट मूव कर दोगे, मतलब पूरी स्टेट नूं कवर कर दोगे, तो वो हुंदा हैगा स्टेट लैवल ट्रेड। जदों तुसी आपदी पूरी डिस्ट्रिक्ट नूं कवर कर रहे होंगे, वो हुंदा लोकल लैवल ट्रेड। ते जदों तुसी आपदी स्टेट तो भी बाहर चले जाने होंगे, पूरी कंट्री नूं कवर कर दोगे, पूरी कंट्री दे विच किते भी तुसी सेल परचेज दा काम कर रहे होंगे, उहनूं आपां कहने नेशनल लैवल ट्रेड। मतलब कि पंजाब दी डीलिंग हरियाणा नाल हो रही है, पंजाब दी डीलिंग राजस्थान नाल हो रही हैगी, इदां मतलब कि तुसी आपदी स्टेट तो बाहर जाके किसी होर स्टेट नाल डील कर दोगे, वो हुंदा नेशनल लैवल ट्रेड, कि पूरी कंट्री दे कंट्री नूं कवर कर रहे हो, या फिर दूसरी स्टेट्स नाल भी तुसी की कर रहे हो, डील कर रहे हो। समझ आ गई गल? क्लियर होगी गल? क्वांटिटी बेसिस ते होलसेल ट्रेड, जिथे तुसी बल्क दे विच समान खरीददे हो, ते बल्क दे विच ही की करदे हो, रिटेलर्स नूं बेच दोगे। ठीक है, जिन्नी बल्क क्वांटिटी दे विच आपां प्रोड्यूसर तो खरीदेंगे, उन्नी बल्क क्वांटिटी च तां नहीं आपां रिटेलर नूं बेचदे, बट हाँ जिवें कस्टमर जदों समान लेके आंदे, एक यूनिट ले ली, एक दो चीज़ां लेके आंदे, खरीददे हैगे, बट होलसेलर जदों रिटेलर नूं समान बेचदा हैगा, तो वो एक दो क्वांटिटी नहीं बेचदा, वो ज्यादा क्वांटिटी बेचदा। लेकिन प्रोड्यूसर तो जदों वो खरीददा, वो उदों भी वध समान खरीददा है। रिटेलर कौन हुंदा, जिहड़ा होलसेलर तो बल्क दे विच समान खरीददा हैगा, ते जिहड़े कंज्यूमर्स हुंदे हैगे उन्हां नूं घट क्वांटिटी दे विच समान बेचदा, एक एक दो करके, जिवें भी उन्हां दी नीड्स एंड वांट्स हुंदियां हैगियां, ओदे अकॉर्डिंग रिटेलर की करदा हैगा, समान बेचदा। ते इह क्वांटिटी बेसिस ते आपां ट्रेड नूं डिवाइड कीता होया कि घट खरीद रहे हैं, वध खरीद रहे हैं, घट खरीद रहे हैं, वध खरीद रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। मेनली हुण इस चैप्टर दे विच ना आपां होलसेल ते रिटेल ट्रेड बारे ही पढ़ना है। होलसेल ट्रेड की हैगा, होलसेलर की सर्विसेज प्रोवाइड करदा, रिटेल ट्रेड की हैगा, रिटेल ट्रेड दे विच आपां की सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे, किन्ने तरह दा रिटेल ट्रेड हुंदा है, ये सारियां चीज़ां आपां डिटेल दे विच पढ़नी है। आज जिहड़ा टॉपिक सीगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ते लेवल्स, ये बस इन्ना की सीगा, इन्ना दी आपां नूं डेफिनेशंस ही हैगियां, तो वो आपां इत्थे ही डिस्कस कर लिया। होलसेल ते रिटेल बारे अगे अगे दिता होयागा डिटेल दे विच, वो आपां पढ़ांगे। होलसेल ते रिटेल दे बारे पढ़न तो पहला कुछ अपने कोले डॉक्यूमेंट्स दिते होए गए, जेडे कि इंटरनल ट्रेड दे विच यूज हुंदे हैगे, प्लस कुछ टर्म्स नेगियां जेडियां कि ट्रेड दे विच यूज कीतियां जांदियां हैगे। तो वन बाय वन पढ़ देंगे। सब तो पहला है इनवॉइस। हुण देखो इनवॉइस की हुंदा है, जदों तुसीं उधार ते समान खरीदण जाने होगे दुकान तो, ते दुकानदार जेड़ा तुहानूं बिल दिंदा ना, आपां की कहने कि दुकानदार ने आपां नूं बिल देता समान दा,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਨਵॉइस। यानी कि सेलर जो क्रेडिट मतलब कि उधार, सैलर जो क्रेडिट सेल ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਲਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਵॉइस, ਤੇ ਬਾਇਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਨਵॉइस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿੱਲ। ਸੈਲਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਨਵॉइस ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਇਨਵॉइस। ਪਰਫਾਰਮਾ ਇਨਵॉइस ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵॉइस ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਾਇਰ ਤੋਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸੈਲਰ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਇਨਵॉइस ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਕਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੀਲ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਸੈਲਰ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਦਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਲਰ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਇਨਵॉइस ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ। ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਇਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੂ ਸੈਲਰ। ਸੈਲਰ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, देखो राम ते मोहन दो बंदे हैं। राम ने मोहन तो सामान खरीदा 50,000 का उधार ते। राम ने जो मोहन तो सामान खरीदा उधार ते, मोहन की बन गया राम वास्ते लाइबिलिटी, क्रेडिटर ओदा कि उन्हें तो पैसे लेने हैं। देखो हुण तुसीं अकाउंट स्टूडेंट्स हो तो लाइबिलिटी डेबिट डेटर क्रेडिटर की हुंदे, मैं थोड़े नाल गल्लां कर सकदी हांगी। हुण मोहन ने की करना है, राम तो पैसे लेने हैं तो राम में मोहन वास्ते की बन गया एसेट यानी कि ओदा डेटर। हुण राम दा जो लेजर है मोहन दियां बुक्स दे विच की होगा 50,000 नाल डेबिट ते मोहन दा लेजर राम दियां बुक्स दे विच 50,000 नाल की होगा क्रेडिट। मान लो कि हुण इस 50,000 दे समान दे विचों राम जो है मोहन नू 2,000 रुपए दा समान वापस कर आंदा है कि यार 2,000 रुपए दा जिहड़ा समान सीगा दी क्वालिटी वधिया नहीं सी, कोई भी दिक्कत सीगी, मैं वापस करके जा रहा। जदों राम मोहन नू समान वापस करे आया हुण ओदी ये 50,000 वाली लाइबिलिटी 2,000 नाल घट जूगी ते किन्नी रह जूगी, सिर्फ 48,000 दी ये लाइबिलिटी रह जूगी। हुण आ जिहड़ा 2,000 रुपए नाल राम मोहन दे लेजर नू आपदियां बुक्स दे विचों डेबिट करूगा, और डेबिट करन दी इंफॉर्मेशन ले जो राम डॉक्यूमेंट इशू करूगा मोहन दे नाम ते उस डॉक्यूमेंट नू क्या जांदा हैगा, डेबिट नोट। बेसिकली सिंपली जे थोनू कहां कि बायर ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਾਇਰ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਬੁక్స్ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਾਲ ਸੈਲਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋਇਆਗਾ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਬਾਇਰ ਸੈਲਰ। ਹੁਣ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਕੌਣ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗਾ मोहन। मोहन ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਊਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ 50,000 ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਡੈਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਲੈਜ਼ਰ 50,000 ਡੈਬਿਟ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੋੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ 2,000 ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਾਤਾ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਆਪਦੀਆਂ ਬੁక్స్ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸੈਲਰ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਦਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਜੋ ਹੈ ਬਾਇਰ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਸੈਲਰ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਖਾਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਲੌਰੀ ਰਸੀਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਸੀਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਲੌਰੀ ਰਸੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਰ ਤੇ ਬਾਇਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
एक बंदा बठिंडे दा है, एक बंदा लुधियाने दा है। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਨ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਲਈ कि कल नूं कोई रौला ना पा के बह जाए कि तेनों इन्ना समान दिता सीगा, इन्ना समान घट गया, ये कोई रौला ना पा के बह जाए, इहदे लई ट्रांसपोर्टेशन वाला बंदा जो तुहानूं एक डॉक्यूमेंट इशू करूगा कि मैं सैलर तो इन्ना समान रिसीव किया, इन्नी क्वांटिटी इस प्राइस दा ते यह समान मैं इस जगह ते पहुंचाना हैगा, इस तरह के डॉक्यूमेंट नूं आपां कहने हैगे लॉरी रसीट या फिर ट्रांसपोर्टेशन रसीट। बेसिकली ये सिंपल जी गल यही हुंदी हैगी, हुण जिवें मान लो कि बठिंडे तो समान तुसीं लुधियाने तो भेज रहे होंगे, ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਭੇਜੋਗੇ, ਹੁਣ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ वाला जो बंदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन वाली जी कंपनी होगी, वो एक डॉक्यूमेंट इशू करके कंफर्म करूगी कि मैं इन्ना समान रिसीव किया ते यह समान मैं इस जगह ते पहुंचाना हैगा, ठीक है। एक कंफर्मेशन जो लैटर होगा, एक्नॉलेजमेंट लैटर, उन्होंने आप लॉरी रसीट कहने। सिमिलरली की होंदा है रेलवे रसीट, हुण जे तुसीं रेल थ्रू ट्रेन थ्रू एक जगह तो दूसरी जगह समान पहुंचाना हैगा, तो रेलवे अथॉरिटीज जेड़ा थोनू एक्नॉलेजमेंट डॉक्यूमेंट इशू करनगे कंफर्मेशन लई कि तुसीं सानू इन्ना समान दिता हैगा इस जगह ते पहुंचाने लई, उन्होंने आपां रेलवे रसीट दा नाम दिंदे हैगे। लग गया पता 6 डॉक्यूमेंट्स किहड़े-किहड़े यूज हुंदे हैगे इंटरनल ट्रेड दे विच। जे कोई भी ना समझ आया तो पूछ लियो, ठीक है। देन टर्म्स ऑफ ट्रेड, हुण ट्रेड दे विच आ कुछ टर्म्स भी यूज कीतियां जांदियां हैं। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी तुसीं रोजमर्रा दे विच सुनदे ही हो, जोमैटो तो तुसीं कुछ खाण नूं मंगवाया हैगा या फिर फ्लिपकार्ट तो तुसीं कुछ कपड़े मंगवाए, कोई भी चीज़ ऑर्डर कीती हैगी तो उत्थे तुसीं कैश ऑन डिलीवरी दी ऑप्शन चूज करके आने हो। कैश ऑन डिलीवरी दा की मतलब है कि पेमेंट डिलीवरी होने तो बाद दित्ती जाऊगी, तो ये तुहाडी फर्स्ट टर्म होगी। फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल, फ्री ऑन बोर्ड और फ्री ऑन रेल की दा मतलब की हुंदा हैगा कि इहदे विच बायर ਤੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੂਗਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਂਗੇ फ्री ऑन बोर्ड और फ्री और रेल। CIF कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, अगर मान लो कि प्राइस जो मैंशन किया होया गुड्स का, उस प्राइस दे विच कॉस्ट, इंश्योरेंस ते फ्रेट तीनों चीज़ां इंक्लूडिड होणगियां गुड्स दी प्राइस दे विच, तो ਉਹਦੇ ਲਈ वर्ड यूज किया जाता है CIF कि यह प्राइस कॉस्ट, इंश्योरेंस प्लस फ्रेट मिला के इन्ना बने। एरर्स और ओमिशंस एक्सपेक्टेड, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵॉइस ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਬਿਟ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਜੇ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड किया जाता है कि जो तुम एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैथों ये चीज़ रह गई सी, ये चीज़ मैं मैंशन करना भुल गया या ये मैथों गलती होगी, वो वर्ड यूज किया जाता है एरर्स एंड ओमिशंस एक्सपेक्टेड। ओके क्लीयर, 4 सौखियां टर्म सीगियां। हुण आ जाओ होलसेल ट्रेड पे। देखो बहुत ज्यादा सौखा चैप्टर है, करके वन शॉट वीडियो तो नहीं होगी, बस 2 ही पार्ट्स दे विच आपां सारा दा सारा चैप्टर कर लांगे। वीडियो लंबी जरूर होगी थोड़ी, वन शॉट नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर दे विच यार देखो कुछ भी नहीं हैगा, बहुत ही ज्यादा ईजी चैप्टर है। रोजमर्रा दे विच आपां ये सारी चीज़ां सुनते हैं, देखते हैं, तां करके ठीक है। हुण होलसेल ट्रेड का मतलब तुहानूं पता लग ही गया। इट रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ ट्रेड इन विच गुड्स आर बॉट इन bulk quantity from producer and are sold to retailers in small quantity। bulk ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ producer ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ retailer ਨੂੰ small quantity ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਹੋ। फीचर्स ऑफ होलसेल ट्रेड की है, फीचर्स जेडे होलसेल ट्रेड दे, एक तो जेडी आप डेफिनेशन पढ़ के आए, बल्क दे विच खरीदया प्रोड्यूसर तो स्मॉल क्वांटिटी दे विच रिटेलर नूं देता, प्रोड्यूसर ते रिटेलर दे विच की हुंदे हैगे लिंक हुंदे हैगे, तो इदां कुछ भी तुसीं इदां छोटियां चीज़ां दी जेहड़ियां हैगियां होलसेलर वाले बना के पॉइंट्स इत्थे लिख के आने हैगे। Wholesaler act as a link between producer and retailer. Wholesaler deals with large quantity of goods.
समझाने की लोड़ ही नहीं, आपे ही समझ आई जाते। होलसेलर इज जनरली स्पैशलाइज इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। होलसेलर मेनली एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट दे विच ही काम करते, जिवें स्टेशनरी दी सारी आइटम्स हो गई, कपड़े दी सारी आइटम्स हो गई, ठीक है। इदा होलसेलर मेनली एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट दे विच ही यूज करते। हाँ, लेकिन उस लाइन ऑफ प्रोडक्ट दे विच जिन्नियां भी गुड्स आंदियां, जिन्ने भी अगे गुड्स बनदियां गया, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਿਆ। ਟਾਈਪ ਆਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਹੋਲਸੇਲਰ ਇਨਵੈਸਟ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਇਨ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਆਫ ਗੁੱਡਸ। ਹੁਣ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Wholesaler generally sold goods in small lots to retailers and generally does not sell the ultimate consumer। छोटे lots ਦੇ ਵਿੱਚ retailer ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈਗਾ, consumers ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। Generally the margin profit wholesaler ਦਾ ਜਿਹੜਾ profit margin ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फर्स्ट इंटरमीडिएरी इन दी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप पढ़िया सीगा, मैन्युफैक्चरर तो होलसेलर, होलसेलर तो रिटेलर, रिटेलर तो कंज्यूमर। तो एक ही हैगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैगा, गुड्स ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ? ਸੌਖੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਮਾਂ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਹੋਲਸੇਲਰ। ਹੁਣ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पहला आ जाएंगे सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स, फिर आएंगे सर्विसेज टू रिटेलर्स, देन फिर आएंगे सर्विसेज टू दी सोसाइटी। एक एक करके पढ़ांगे सारी। फैसिलिटेट लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हुण होलसेलर प्रोड्यूसर तो की करदा है, बल्क दे विच समान परचेज कर लैंदा है। जे प्रोड्यूसर तो बल्क दे विच समान परचेज किया जाऊगा तो प्रोड्यूसर बल्क क्वांटिटी दे विच ही समान की करूगा, प्रोड्यूस करूगा, ते मैन्युफैक्चर बल्क क्वांटिटी दे विच ही समान मैन्युफैक्चर करूगा। जदों तुसीं बल्क दे विच प्रोडक्शन कर दोगे तो उहदे नाल जिहड़ी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुंदी हैगी ओह की हुंदी हैगी, रिड्यूस हो जाती है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਂਗੇ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੱਧ ਪਊਗੀ। कॉस्ट वाले चैप्टर च पढ़ देंगे आप, ठीक है। लेकिन जो तुम ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेने होंगे तो जी कॉस्ट हैगी अपनी वो हौली हौली की हैगी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है, वेरिएबल कॉस्ट जी हैगी अपनी घट लगनी शुरू हो जाती हैगी। तो भी इत्थे हैगा जिन्नी ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की होगी, रिड्यूस होगी। जब मैं घट समान बनाऊंगी वही मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वध लगूगी। तो होलसेलर बल्क दे विच समान परचेज करके प्रोड्यूसर तो ये चीज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो बल्क दे विच समान प्रोड्यूस कर सके। तो जो बल्क दे विच समान प्रोड्यूस किया जाऊगा तो ਉਹਦੀ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, तो ਉਹਦੇ इकोनॉमीज ऑफ स्केल ਉਹ अचीव कर सकता है। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन, होलसेलर की करता है मार्केटिंग फंक्शन, होलसेलर एडवर्टीजमेंट का काम भी करता है। एडवर्टीजमेंट करन नाल की होगा कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे, कंज्यूमर्स अट्रैक्ट होंगे तो वध समान खरीदणगे, वो वध खरीदणगे, रिटेलर वध खरीदूगा, रिटेलर वध खरीदूगा तो ही होलसेलर वध खरीदूगा, तो इहदे नाल मैन्युफैक्चरर नूं की होगा फायदा होगा। एक्सपर्ट एडवाइस, हुण इहदा मैन्युफैक्चरर डायरैक्टली कस्टमर्स नाल कॉन्टैक्ट दे विच नहीं हुंदे, होलसेलर भी नहीं हुंदा, लेकिन होलसेलर दा कॉन्टैक्ट रिटेलर नाल हुंदा है ते रिटेलर दा अगे कस्टमर्स नाल डायरैक्ट कॉन्टैक्ट हुंदा है। कस्टमर्स दी इंफॉर्मेशन रिटेलर कोले आंदी है, जो भी उन्हां दी नीड्स एंड वांट्स हुंदियां है वो रिटेलर नूं पता लगदा, रिटेलर होलसेलर नूं दसदा है ते ओही होलसेलर अगे जाके किहनूं दसदा है, मैन्युफैक्चरर नूं दसदा है, ते इहदे नाल उन्हां नूं पता लगदा है, एडवाइस मिल जांदी है कि उन्हां नूं चीज़ां प्रोड्यूस करनियां चाहीदियां ते की चीज़ां उन्हां नूं प्रोड्यूस नहीं करनियां चाहीदियां। ते इदां नाल इस इंफॉर्मेशन नाल ओह अपने गुड्स दे विच चेंजेस कर सकदे हैं ते इह एडवाइस देण वाली सर्विस भी प्रोवाइड करदा है होलसेलर। आही आप हुण फीचर च भी पढ़ के आए हैं कि ज्यादा पैसा वो कादे च इन्वेस्ट करदा है, स्टोरेज ऑफ गुड्स से इन्वेस्ट करदा है। जे होलसेलर ज्यादा पैसा स्टोरेज से इन्वेस्ट करूगा तो मैन्युफैक्चरर नूं इन्वेस्ट करने की लोड़ नहीं हैगी, तो स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करदा होलसेलर मैन्युफैक्चरर। फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करदा है। किवें प्रोवाइड करदा है? मैन्युफैक्चरर्स तो कैश ते समान चक के या फिर उन्हां नूं एडवांस पेमेंट्स करके ही मैन्युफैक्चरर्स नूं फाइनेंशियली हेल्प करदा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स जिहड़े हुंदे हैगे उन्हां नूं फाइनेंस दी ज़्यादा लोड़ हुंदी हैगी, उन्हां ने प्रोडक्शन करनी हुंदी है, रॉ मटीरियल खरीदना हुंदा, मशीनरी खरीदनी हुंदी है, किते ज़्यादा फाइनेंस की लोड़ होने करके मोस्टली होलसेलर कैश ते परचेज करदे या फिर एडवांस पेमेंट्स करके
फाइनैशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। बेयरिंग रिस्क हुण स्टोरेज सारी की हैगी होलसेलर दी हैगी। स्टोरेज के दौरान अगर गुड्स जो आप स्टोर कर रहे हैं या ट्रांजिस्ट कर रहे हैं एक जगह तो दूसरी जगह मूव कर रहे हैं ਉਹਦੇ दौरान जो गुड्स डैमेज हो जाएंगे तो डैमेज का सारा लॉस किदा हुंदा सारा कौन बेयर करता है होलसेलर बेयर करता है। तो होलसेलर इदां दे गुड्स ਨੂੰ स्टोर करके रखना उन्होंने खराब होने तो बचाना इदां दे जिहड़े रिस्क हुंदे हैं वो भी सारे कौन लैंदा है होलसेलर ही लैंदा है। फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन कंटिन्यूटी होलसेलर की करता है कंटिन्यूस बेसिस ते ही प्रोड्यूसर तो समान खरीदता रहता है। जो कंटिन्यू बेसिस ते समान खरीदूगा तो उहदे नाल प्रोडक्शन कंटिन्यूटी बनी रहूगी प्रोडक्शन रुकूगी नहीं। तो ये कुछ सर्विसेज है जो मैन्युफैक्चरर नूं प्रोवाइड कीतियां जांदियां हैं बाय होलसेलर। क्लीयर हो गया। हुण इदां दी कुछ सर्विसेज होलसेलर रिटेलर नूं भी प्रोवाइड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होलसेलर कंटिन्यूस बेसिस ते प्रोड्यूसर तो समान खरीददा रहंदा हैगा तो वो कंटिन्यूस बेसिस ते रिटेलर नूं समान प्रोवाइड भी कर दिंदा है। तो इहदे नाल रिटेलर कोले हमेशा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स रहंदी है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट होलसेलर रिटेलर्स नूं उधार ते भी समान बेच दिंदा हैगा तो उन्हां नूं इदां फाइनैशियली हेल्प हो जांदी है। रिस्क शेयरिंग गुड्स ਨੂੰ स्टोर करके रखਣ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ मूव ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਲਸੇਲਰ ਰਿਟੇਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਗੁड्स ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟਣ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰਿਟੇਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। स्पैशलाइज्ड नॉलेज हुण मैन्युफैक्चर किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं कुछ नवी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं नवे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं इस तरह की सारी स्पैशलाइज्ड नॉलेज भी जो है होलसेलर मैन्युफैक्चर रिटेलर नूं प्रोवाइड करता है। गुड्स की पब्लिसिटी कर देगा एडवरटीजमेंट वगैरह करके मार्केटिंग सपोर्ट वही एडवरटीजमेंट करके जो एडवरटीजमेंट करूगा तो होलसेलर नूं भी फायदा मैन्युफैक्चरर नूं भी फायदा ते रिटेलर नूं भी फायदा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होलसेलर जो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि जिहड़े एक्सपेंसिस हुंदे है रिटेलर दे वो भी रिड्यूस करन दे विच हेल्प करदा। किवें हेल्प करदा क्योंकि देखो होलसेलर की करदा बल्क दे विच मैन्युफैक्चर तो समान खरीददा है जे बल्क दे विच समान खरीदूगा तां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटूगी प्रोड्यूसर दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गई उहदे नाल की होगा प्रोड्यूसर जो है मैन्युफैक्चरर नूं घट रेट ते समान प्रोवाइड कर दूगा। जे होलसेलर नूं घट रेट ते मिल रहेगा तो अगे रिटेलर नूं भी घट रेटां ते समान प्रोवाइड करवा दूगा ज्यादा चार्जेस नहीं लऊगा ते इहदे नाल रिटेलर नूं भी समान जो है वो घट रेट ते मिल जांदा है तो उहदे इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो अचीव कर लैंदा। तो ये कुछ सर्विसेज है जिहड़ियां होलसेलर रिटेलर नूं दिंदा है ठीक है। हुण इदां दी ही कुछ सर्विसेज होलसेलर सोसाइटी नूं भी दिंदा है। सोसाइटी दे विच सारे लोग आ जांदे हैं रिटेलर भी आ जांदा मैन्युफैक्चरर भी बट मेनली कंज्यूमर्स दे अकॉर्डिंग आपां ये गल करदे हांगे। ते की सर्विसेज सोसाइटी नूं रिटेलर प्रोवाइड करदा हैगा कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस। हुण देखो जदों भी किसी भी प्रोडक्ट दी डिमांड ते सप्लाई प्रोडक्ट की जो डिमांड ते सप्लाई दे विच बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा वध गई सप्लाई उन्नी नहीं हैगी या फिर सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट की डिमांड उन्नी नहीं हैगी तो उस केस दे विच एक डिमांड ते सप्लाई कारण जो प्राइसिस दे विच फ्लक्चुएशन आंदी है उन्हां नूं स्टेबल करन दे विच भी होलसेलर हेल्प करदा हैगा। किवें हेल्प करूगा फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई उन्नी नहीं हैगी तो होलसेलर ने की करते हैं प्राइजेस बढ़ा देने हैं। हुण मान लो कि सप्लाई बहुत ज्यादा हैगी लेकिन डिमांड उन्नी नहीं हैगी फिर होलसेलर की करूगा आ जिहड़ियां गुड्स सप्लाई कर रहा हो उन्हां नूं आपदे कोले स्टोर करके रख दूगा ते उन्हां दी मार्केट दे विचों सप्लाई बंद कर दूगा। जदों मार्केट दे विच सप्लाई बंद हो जूगी सप्लाई घट गई डिमांड दे की आ जूगी सप्लाई बराबर आ जूगी। तो इदां डिमांड सप्लाई दे विच जो फ्लक्चुएशंस मार्केट दे विच चलदियां हैं या फिर प्राइजेस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं उन्हां नूं सही करन दे विच उन्हां नूं कंट्रोल करन दे विच भी होलसेलर हेल्प करदा है। ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होलसेलर रिटेलर नूं टाइमली गुड्स अवेलेबल करवांदा है ते होलसेलर अगे रिटेलर अगे कंज्यूमर्स नूं गुड्स टाइमली अवेलेबल करवांदा है। सिलेक्शन फैसिलिटी बहुत सारियां गुड्स होने करके सोसाइटी नूं कंज्यूमर नूं एक फैसिलिटी मिलती है कि वो चूज कर सकते हैं नंबर ऑफ गुड्स दे विचों कि उन्होंने केड़ी चीज खरीदनी है। बेनिफिट ऑफ एडवरटीजमेंट जो होलसेलर करता है उहदे नाल कंज्यूमर्स नूं भी फायदा हुंदा हैगा उन्हां नूं नवे नवे प्रोडक्ट्स बारे इंफॉर्मेशन मिलती रहंदी हैगी।
ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਟੇਲਰ ਥਰੂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਥਰੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੇ ਘਟੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਹੋਲਸੇਲਰ ਦਾ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦਾ, ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਫॉर ਟੂਡੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਲਸੇਲਰ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪੜਨਾ। ਮੇਨਲੀ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਲਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਐਰੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ